कुछ ऐसे क्राफ्ट्स हैं जो लैंग्विशिंग कैटेगरी में आते हैं जी। इसमें जब हमारी यहाँ कमेटी बैठी मेरे ज्वाइन करने से पहले, उन्होंने सबसे पहले 3-4 क्राफ्ट्स को आइडेंटिफाई किया और द फर्स्ट थिंग दैट वी रियलाइज वाज कि इनको रिवाइव करने के लिए हमें इनकी जीआई रजिस्ट्रेशन करानी बड़ी ज़रूरी है. सो दैट्स व्हाई इन द फर्स्ट फेज वी टुक अप वग्गू, नमदा एंड गब्बा. Now in second phase we are taking up silverware and copperware. Both have huge potential. Copperware basically इसको कंदकारी कहा जाता है जिसमें आप हाथ से काम करते हो और silverware is also another thing जिसका बड़ा कश्मीर में potential होता था, लेकिन because of the cheap machine made जो imitation jewelry आती है उसकी वजह से कश्मीर silverware कहीं ना कहीं impact हो गया. बट आई स्टिल बिलीव कि दोनों में अगर इंटर क्राफ्ट कोलैबोरेशन करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए तो हम इसको रिवाइव कर सकते हैं. सो सिंस दीज आर इन अ वेरी रेड कैटेगरी ऑफ लैंग्विशिंग, सो वी हैव डिसाइडेड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी एक्शन प्लान. इसके लिए हम किया है और दैट्स वाई हम अपने हर नो योर आर्टिजन कैंपेन में सिल्वरवेयर को, कॉपरवेयर को, वग्गू, नमदा एंड गब्बा इनको प्रायोरिटी देते हैं. दे हैव टू बी देयर. फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 15-20 स्टॉल लगाने होंगे तो वी हैव टू डेडिकेट दीज 5 स्टॉल्स टू द पीपल. बट इट कम्स विद द कैविएट कि यू कैन नॉट रिवाइव एनीथिंग without people support. Exactly. See, handicrafts and handloom department cannot buy all the waggus. We can create an immersive environment, where we can take to the people the advantages of buying a waggu or a gabba or a namda or silverware or copperware. Exactly. Unless the people buy. Huh. It pains me when people just reject the waggu. मतलब मैं खुद इतना इम्प्रेस हुआ जब मैंने वग्गू को देखा that I also purchased a couple of waggus for my family and I am using it in my home as a badge of honor. Now the encouragement that the weaver is getting of waggu is कि he's already thinking, वो कह रहा था सर मैं अब he instead of the paddy straw he has started using cotton knots. So he showed me one for the window. So what is happening is that weaving of waggu is getting tighter, more polished, and they are now customizing with windows as window blinds, curtain covers. I in fact told them, मैंने अपने accounts officer से भी कहा, मैंने कहा यार we are the handicrafts department. Let us do an experiment, or because we have the peak winter going on, मैंने कहा instead of these curtains, let us have the waggu curtains, क्योंकि अंदर नहीं आएगी वो. And then after speaking to Ruxana and Zamir and many other waggu makers, I came to know कि नहीं, waggu के साथ एक और चीज़ को पत्तिज कहा जाता है. So and then they told me कि waggu एक पिच कहते हैं which is in the dull waters, उससे बनाया जाता है. I mean, imagine the kind of hard work. अभी recently one video of Ruxana went viral. Lakhs of people saw that. In peak winter when we are in our cozy rooms with ACs and other things on, तो सारा काम हाथ से वो कर रही है, वो रोल करती है रीड को, उसके बाद उसने वो फ्रेम बनाया होता है and then she starts weaving. If she's working so hard in peak winter with the hostility of weather, so I think, and it is coming cheap, we can buy. If even 10% of the people in Kashmir decide to buy a waggu, one family, one waggu, I think we will be reviving the entire craft. Same holds true for gabba and same holds true for namda. I mean, I went to Farokh Saab's factory, छोटा मोटा कारखाना उन्होंने लगाया है, एंड मैंने एक वीडियो भी इस पे एक ट्वीट किया था जो एंड टू एंड कैप्चर करता है कि कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं नमदे को बनाने में. एंड नमदा हैज़ इंटरनेशनल value. I mean, if people in America and the West come to know the kind of felting processes involved, it will sell like hotcakes. That's why our objective is in the handicrafts and handloom department to provide back-end logistical support to the artisans and weavers and explore niche markets for them for these products. And I think that these three at least, namda, waggu and gabba with silver and copperware, have got huge international market which is waiting for them, and we are trying our best to create the friendly environment so that they are able to launch themselves on this platform. इसी के मतलब आपसे पूछना चाहूँगी, जो न्यू जनरेशन है उसका कितना रुझान लगता है आपको ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की तरफ, वो कितना आप इन्वॉल्व होते हैं?
New generation is passionate about Kashmir crafts to the extent of wearing. Like for example, अभी चिल्लाई कलान, जश्न चिल्लाई कलान शुरू होगा, people will start wearing farran. They are passionate about Kashmir crafts, but जब तक वो आर्टिजन की स्टोरीज़ को नहीं जानेंगे, इसके हार्ड वर्क को नहीं पहचानेंगे, जी तो वो पैशन रेवोल्यूशन नहीं बन सकता है. दैट्स वाई हमने क्राफ्ट सफारीज, वी आर ए यूनेस्को सिटी अंडर द क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, एंड हमारी कोशिश है कि हम अब जो ही स्कूल्स खुलेंगे विंटर वेकेशन के बाद, तो हम लिटिल कारीगर्स का एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इन स्कूल्स और कॉलेजेस में. हम वर्कशॉप्स करेंगे जहाँ पर हम छुपे हुए ओवरशैडोड प्रोसेसेस ऑफ क्राफ्ट सेक्टर को लोगों तक ले जाएंगे. जब भी एक मर्तबा देखेंगे कि यार्न डाइंग में कितना टाइम लगती है, कितनी मेहनत लगती है, एक पेपर मैशी का साख्ता बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, और कारपेट को बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना लेबर इंटेंसिव ये इंडस्ट्री है. सो वंस दे रियलाइज द प्रोसेस इन हार्ड वर्क, आई एम श्योर कि कोई भी बाद में आर्टिजन के साथ प्रोडक्ट खरीदते वक्त कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा. आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी. डिजिटल एरा चल रहा है, तो हैंडीक्राफ्ट ने कोई ई कॉमर्स लॉन्च करने के लिए कुछ इनिशिएटिव आगे के लिए फ्यूचर प्लान सोचा है? जी, we understand the power of e-commerce, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट कंसीव भी किया हुआ है. अगेन इसमें हमें आर्टिजन्स की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हर प्रोडक्ट, हियर यू आर टॉकिंग ऑफ वन प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का पूरा पोर्टफोलियो बनाना है आपको. फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपके सामने ये चेन स्टिच की ये है एक प्रोडक्ट है, तो इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, इसका साइज, सो यू हैव टू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ इट. इट्स एन ऑनरस टास्क. हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर में ऑनलाइन स्टोर्स हैं. दैट्स वाई वी हैव सबमिटेड अ प्रपोजल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ताकि हम ई कॉमर्स, ई ब्रांडिंग को पॉपुलराइज करें. उसके अलावा हम जो प्राइवेट सेक्टर में ऑनलाइन स्टोर्स आ रहे हैं, इसको अपने डोमेन में लाने के लिए इनके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस को, मॉनिटरिंग के प्रोसेसेस को, क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेसेस को, इन्हीं को नहीं, जो बाकी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेज़ॉन हो गया या बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट 1978 में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं जी, ताकि उनको हम एट पार ला सकें विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2025. एंड ऑनलाइन sale purchase, which will further facilitate the artisans and weavers, is an important lever in achieving that goal. So उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं.